Hello friends, I am Dr. Sakila. Our today's topic is Samuel Taylor Coleridge. In this video, our focus will be on Samuel Taylor Coleridge's life, his important works, and facts related to S.T. Coleridge as a critic. What the other critics said about S.T. Coleridge and which terms, which facts given by S.T. Coleridge. So keep it watching up to the last and please like, share and subscribe it. Let us start with S.T. Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, who was born in 1772 and he was died in 1834. He was the most famous and most important romantic English poet. He was a literary critic as well as he was a philosopher, and with his friend William Wordsworth he starts the romantic movement, and you can see the age of the romantic age, starts of the romantic age with lyrical ballads. And he was a member of the Lake Poets also. His critical work, especially on William Shakespeare, was highly influential, and he helped introduce German idealist philosophy to English-speaking culture. He had a major influence on Ralph Waldo Emerson and American Transcendentalism. So this is about Samuel Taylor Coleridge in a brief. He was a romantic poet, literary critic, philosopher, and he was the founder of the Romantic movement. He was the member of the Lake Poets, and he has a great role in criticism also. His critical work on William Shakespeare that was highly influenced, and he helped to introduce German idealist philosophy in English speaking culture, and Ralph Waldo Emerson, who was greatly influenced by S.T. Coleridge, and he has somewhere great role in American Transcendentalism. Now come on the most important works and journals. Which are the most important works and which are the journals that was started by the S.T. Coleridge? The Watchman. Watchman जो जर्नल था टू बी प्रिंटेड एवरी 8 days. इनका ये जो वॉचमैन था ये हर एक जो 8 days में एवरी 8 days एवरी 7 days जो है वो पब्लिश होता था. इनका जो फर्स्ट इशू था शॉर्ट लिव्ड जर्नल वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1796 में. ये 1796 में इनका ये द वॉचमैन जो है वो पब्लिश हुआ था. और इनका जो है एवरी 8 days क्यों पब्लिश होता था? बिकॉज ही वांट टू अवॉइड दिस वीकली न्यूज़पेपर फ्रॉम टैक्स से बचने के लिए इन्होंने ये किया था. मार्च 1796 में स्टार्ट किया था, लेकिन इन द सेम ईयर इट वाज सीज्ड. सेम ईयर में ये जो है वो सीज हो गया था. उनका सेकंड जो था वो था द फ्रेंड. इनका सेकंड जो जर्नल था दैट वाज फ्रेंड 1809 में स्टार्ट हुआ. तो वॉचमैन इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है. इट वाज आस्क्ड मेनी टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द वॉचमैन जर्नल बाय विच राइटर, है ना, कौन से राइटर का है, कौन से क्रिटिक का है द वॉचमैन. दिस इज बाय एस.टी. कॉलेरिज. स्टार्टेड इन मार्च 1796 and at the end of the 1796 it was seized, it was closed, it was stopped. The lyrical ballads. The lyrical ballads, it is known as the starting points of the lyrical ballads. रोमांटिक एज की शुरुआत जो है वो लिरिकल बैलेड से मानी जाती है. लिरिकल बैलेड्स दिस इज रिटन बाय एस.टी. कोलरिज विद विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स की शुरुआत की. लिरिकल बैलेड्स जो है 1798 में लिखी गई किसके द्वारा? एस.टी. कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, दोनों ने. और इसमें जो लिरिकल बैलेड्स है, हाउ मेनी पोइम्स इन लिरिकल बैलेड्स? हियर आर 23 पोइम्स. टोटल पोइम्स कितनी है लिरिकल बैलेड्स में? 23 पोइम्स है टोटल. 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय एस.टी. कोलरिज. स्टार्टिंग जो होती है लिरिकल बैलेड्स की विद द पोइम ऑफ एस.टी. कोलरिज द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर. किसके साथ में होती है? राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर बाय एस.टी. कोलरिज. और इसकी जो कंक्लूडिंग या लास्ट पॉइंट जो मानते हैं तो दैट इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे. कौन सी से? टिंटन अबे से होती है, वर्ड्सवर्थ की पोइम से. तो शुरुआत किसकी पोइम से होती है? एस.टी. कोलरिज की, द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर. और क्लोजिंग किसकी पोइम से होती है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम से.
टिंटन अब्बे से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही जो वर्क हैं, दोनों ही पोइम हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अकेले विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है प्रीफेस, इसका लिरिकल बैलेड्स का प्रीफेस ऐड किया है, इसमें कॉमन मैन की लैंग्वेज और ये सब इन्होंने बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स दिस इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें प्रीफेस जो है वो ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था। एंड कब ऐड किया? इट वॉज 1800 में। कब? 1800 में होता है। दिस इज अबाउट द लिरिकल बैलेड्स। तो इनसे ही रिलेटेड पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पोएम कितनी है, कितनी जो है ऐड की गई बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हाउ मेनी पोएम्स वाज एडेड बाय एस.टी. कोलरिज। टोटल इसमें कितने पोएम्स हैं? 23। इसमें कौन कौन सी? द राइम ऑफ द एन्सेंट मारिनर से स्टार्ट होते हैं और टिंटन अब्बे से इनकी एंडिंग खाती है। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है द राइम ऑफ द एन्सेंट मारिनर, जिसमें लिरिकल बैलेड्स की जो है शुरुआत होती है राइम ऑफ द एन्सेंट मारिनर। ये जो है द लॉन्गेस्ट मेजर पोइम कंपोज्ड इन 1797-1798 में जो है कंपोज की गई है और ये सबसे जो है इनकी लॉन्गेस्ट पोइम है। अब जो द राइम ऑफ द एन्सेंट मारिनर है वो किसके बारे में है? द राइम ऑफ द एन्सेंट मारिनर, इसमें जो है एन्सेंट मारिनर जो है नाम का इसमें कैरेक्टर होता है ओल्ड एन्सेंट मारिनर। वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट मेजर पोइम है, इसमें लिखी गई थी और इसमें 17 पार्ट्स हैं। इसमें कितने पार्ट्स में? 17 पार्ट्स में लिखी गई है और टोटल इसमें 6 to 5 जो है 625 लाइन्स में ये लिखी गई है। इसमें अल्बेट्रोस क्या होता है? अल्बेट्रोस नाम का इसमें एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है। तो एन्सेंट मारिनर जो है वो क्या कर रहा होता है? सी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है, अपनी सीप लेकर के अपने बाकी जो है मारिनर के साथ में, बाकी जो लोगों के साथ में जा रहे होते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो मारिनर है, एन्सेंट मारिनर है, वो अपने टेल जो है कौन नरेट करता है यहाँ पे इस पोइम में? एन्सेंट मारिनर जो है वो अपनी जो टेल है वो यहाँ पे नरेट करता है। किसको नरेट करके सुनाता है? ये इसमें वेडिंग कोई गेस्ट, इनकी मैरिज में वेडिंग में कोई गेस्ट आता है उसको, बाकी कोई भी इसकी कहानी जो है एन्सेंट मारिनर की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि शिप के अंदर जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अपने साथियों के साथ में। तो अल्बेट्रोस नाम का जो बर्ड्स है वो इनकी शिप के आगे आगे चलता है। एन्सेंट मारिनर और अल्बेट्रोस का जो मोटो है वो इनको कहीं कोई हार्म करना नहीं था, परेशान करना नहीं था, बल्कि एज ए उनको गाइड की तरह उनको डायरेक्शन दिखा रहा था। लेकिन एन्सेंट मारिनर जो है वो इनको अल्बेट्रोस को क्या कर देता है? किल कर देता है, उसको मार देता है। और आफ्टर दैट जो है वो इनका जो बुरा टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे? जो अल्बेट्रोस जो है फ्ली कर रहा था अलोंग साइड द शिप एंड हेल्प द सेलर, और भी जो सेलर थे, टू सेल टुवर्ड्स अ सेफ प्लेस पे जाने के लिए। लेकिन एन्सेंट मारिनर शॉट एंड किल द अल्बेट्रोस, मार देता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है? विंड जो है काफी तेज चलनी स्टार्ट हो जाती है। शिप वॉज स्टैग्नेंट ऑन द ओशन, और शिप जो है वो ब्रोक हो जाती है। अदर जो सेलर्स हैं वो क्या ब्लेम करते हैं एन्सेंट मारिनर के ऊपर कि उसने ही जो विंड है उसको मेकिंग द विंड हाई एंड प्रेज्ड हिम फॉर मेकिंग द स्ट्रेंज मिस्ट डिसअपीयर। एकदम से मिस्ट धुंध आ जाती है तो वो डिसअपीयर के लिए बाकी जो सेलर्स हैं वो प्रेयर करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे तो थिंग्स हैं और भी ज्यादा वर्स खराब होती जाती हैं। सन जो है वो काफी हॉट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी जो वाटर होता है लेकिन कोई भी ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता। मोस्ट बार ये क्योट भी आती है, वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जो सारे सेलर हैं वो एकदम से बहुत प्यास लगी है उनको और वो पानी पीना चाहते हैं, लेकिन पूरे उसमें सी में पानी ही पानी है, लेकिन पीने लायक जो है एक ड्रॉप भी नहीं है। उसके बाद सेलर जो है वेंट डैम फ्रॉम दियर थ्रस्ट एंड सनबर्न लिप्स। उसके बाद दे हैंग द अल्बेट्रोस। उसके बाद बाकी जो सेलर्स है वो क्या करते हैं? एन्सेंट जो मारिनर है उसके गले में जो बर्ड उसने मारा था वो उसके गले में जो है हैंग कर देते हैं नेक में, और वो किसका सिंबल है? उसके सीन का सिंबल है, उसके अपराध का सिंबल है। उसके बाद थोड़ी सी पेनफुल जो वाइल होती है, शिप अपीयर्ड ऑन द होरिजन एंड द मारिनर बाइट्स हिज arm and suck the blood so that he could cry out to the other sailor। यहाँ पे एन्सेंट मारिनर इतना ज्यादा वो प्यास की वजह से तो वो क्या करता है? अपने खुद को ही हाथ को अपने दांतों से काट लेता है और जो खून निकलता है उससे अपनी प्यास बुझाता है ताकि अन्य सेलर्स को वो आवाजें लगा सके। तो यहाँ पे शिप जो थी वो काफी स्ट्रेंज थी, सेल्ड
विदाउट विंड, बिना विंड के ही सेल किए जा रहे थे, हवा बिल्कुल जो है बंद हो गई थी। और उसके बाद जो है इट वॉज ए गोस्ट शिप, कोई वो देखते हैं उसी टाइम जो एंसेंट मारिनर है कोई गोस्ट की शिप देखता है अपने सामने से, और वो किस रूप में थी, इन द फॉर्म ऑफ ए डेथ, डेथ की फॉर्म में थी। और यहाँ पे जो एंसेंट मारिनर की शोल है उसके साथ में गैम्बलिंग होती है, और इसमें मारिनर की जो शोल है वो जीत जाती है, अदर सेलर्स वर लेफ्ट, और बाकी जो सेलर्स हैं वो सब के सब मर जाते हैं। उसके बाद स्काई वेंट ब्लैक इमीडिएटली एज द गोस्ट शिप स्पैड अवे। Suddenly all the sailors crushed the ancient mariner with their eyes and dropped dead on the deck. Their souls zoomed out of their bodies, taunting the ancient mariner with a sound like that of his crossbow. उसके बाद जो है क्या होता है, वन नाइट नोटिस करता है एंसेंट मारिनर ब्यूटीफुल वाटर स्नेक, वो क्या देखता है, वाटर स्नेक्स को देखता है, और इनको देख करके, वो क्रिएचर्स को देख करके अपना जो एक जॉय जो है फील करता है, ब्लेसिंग देता है विदाउट, बिना किसी मीनिंग के, और वो फाइनली जो है एबल हो जाता है प्रे करने का उनका, और अल्बाट्रोस जो है वो कहाँ गिर जाता है, उसके नेक से उस पानी में गिर जाता है, और इस प्रकार से वो फाइनली स्लीप और ड्रीम्ड ऑफ वाटर का ये स्लीप देखता है। और जब वो उठता है तो देखता है रेनिंग हो रही होती है, और थंडरस्टॉर्म जो है वो शुरू हो जाता है, और उसमें अपने जो फील्ड है शिप जो है वो सेल करना वो स्टार्ट कर देता है विंड की डायरेक्शन में। इस प्रकार से डेड जो सेलर्स हैं वो सब भी अवोक हो जाते हैं, और अपनी शिप जो है बिना किसी स्पीकिंग के, बिना कुछ बोले जो है वो भी अपनी शिप को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है दोबारा से वो शिप जो है एकदम से फिर से मारिनर जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और लास्ट में जो है मारिनर जब उठता है तो डेड सेलर्स मिलते हैं ग्रुप में, और जो है कर्सिंग कर रहे हैं उस सब को मरते हुए, और एंसेंट मारिनर जो है अपनी नेटिव कंट्री है उसको सपोर्ट करता है, देखता है शोर पे उसके किनारे पे, और वो काफी खुश हो जाता है एक पायलट को भी देख करके, एक बॉय को देख करके, और वो प्लानिंग बनाता है आज द हर्मिट जो बॉय है टू अब्जोल हिम ऑफ हिज सिन, अपना सीन जो है उन्हें जो पाप किया है उसे कैसे जो है अब्जोल करे। मारिनर की जो शिप है संकीन है वोटेक्स इन द वाटर, और रेस्क्यू होकर के मारिनर जो है वाटर से, पानी से बाहर उसको निकाला जाता है, और ऑल बोट अपने सेल करके पायलट और पायलट बॉय जो है लॉस्ट देयर माइंड। इस प्रकार से हर्मिट जो है मारिनर से पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, कि कैसा है। देन ही टोल्ड हिज एंटायर टेल टू द हर्मिट, हर्मिट को सारा कुछ उसने बता दिया। मारिनर जो है वेडिंग जो गेस्ट है उसको एक सारी की सारी कहानी सुना रहा था। ही वेंडर्स कंट्री टू टेल हिज टेल, कि उसने किसी को भी अपनी कहानी वो सुनाने के लिए जाता है लेकिन कोई भी उसकी ये कहानी नहीं सुनता। आफ्टर ही टेल्स द स्टोरी ही इज टेम्परेली रिलीव ऑफ अगनी। अब ये वेडिंग गेस्ट को, जो शादी में जो गेस्ट आया हुआ है वेडिंग गेस्ट, उसको ये सारी सुनाने के बाद वो काफी जो है रिलीव अपने आप को फील करता है। और वेडिंग गेस्ट जो है द बेस्ट वे टू बिकम क्लोज विद गॉड इज टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ हिज क्रिएचर्स बिकॉज ही लव्स देम ऑल, ये कह करके अपनी क्लोज कर देता है। ही देन वेनिसेस, the wedding guest जो है is stunned and returns home instead of going to the wedding. He awakes the next day sadder and wiser for having heard mariner's tale. अगले दिन जब जो wedding guest है वो उठता है तो अपने आप को थोड़ा सा sad फील करता है और अपने आप को ज़्यादा wise फील करता है मारिनर की कहानी सुनने के बाद में। तो this is all about the rhyme of the ancient mariner. इसमें ancient mariner जो है वो नरेटर है इस कहानी का, जो वो सुनाता है। अल्बाट्रोस नाम का इसमें बर्ड होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अल्बाट्रोस, उसका सेम क्या होता है कि अल्बाट्रोस को मार देता है और वो फिर अपनी कहानी जो है वो सुनाते हुए घूमता है। और टोटल 625 लाइंस की ये लॉन्गेस्ट मेजर पोइम है। वाटर वाटर एवरीवेयर नोटेड ड्रॉप टू डू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव ऑल। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर में भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है चैरिटेबल। चैरिटेबल जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, काफी बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1816 में। चैरिटेबल जो है 1816 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं, जेराल्डीन है इसमें और चैरिटेबल है। चैरिटेबल ये काफी लॉन्ग जो है नरेटिव पोइम है कोलरिज की। इसमें के अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है रिटन इन 1797 में और सेकंड जो पार्ट है इसका 1800 में लिखा गया है, पब्लिश 1816 में हुई। उसने तीसरा भी जो पार्ट है उसके भी हिस्ट्री कोलरिज ने प्लान बनाया था कि इसका 3rd पार्ट जो है ऐड करने का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ।
इसमें 2 ही पार्ट जो हैं वो ऐड किए गए हैं। इसमें 1816 में ये पब्लिश हुई है। इसके अंदर जो स्टोरी जो है वो एक सेंट्रल जो है फीमेल कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, दैट इज चैरिस्टेबल। चैरिस्टेबल है, उसका एनकाउंटर किससे होता है? एक स्ट्रेंजर से होता है, एक विच से होता है, जेराल्डीन, who claims to have been abducted from her home by a band of rough men। तो यहाँ पे जेराल्डीन जो है वो बताती है कि उसने एक रफ मैन या फिर एक ग्रुप ऑफ ऐसे लोगों का जो उसको क्या कर लेते हैं, अबडक्ट कर लेते हैं। तो चैरिस्टेबल जो है वो कहाँ जाती है? वुड में, जंगल में जाती है प्रे करने के लिए, बाय द लार्ज ओक ट्री के नीचे प्रेयर कर रही है। तो वो क्या, एक स्ट्रेंज जो वॉइस सुनती है, एक अजीब सी आवाज सुनती है वहां पे। और जब ये पीछे देखती है तो वहां पे एक जो है लेडी को मिलती है, एक गर्ल को देखती है। वो कौन है? जेराल्डीन है। Who says that she had been abducted from her home by a man on horseback। जब पूछती है, चैरिस्टेबल पूछती है जेराल्डीन से कि आप यहाँ कैसे हो रात में, तो वो बताती है कि कुछ जो लोग थे, कुछ लोगों ने उसको जो है उसको यहाँ पे किडनैप करके लेकर के आए हैं। तो उसके बाद जो है जेराल्डीन क्या होती है? जेराल्डीन विच होती है। और इसमें हम 7 सिंबल्स इसमें देखते हैं। इसके अंदर जो विच जो है उसके सुपरनेचुरल जो साइन जिसको बोलते हैं जो होती है। तो डॉग जो है वो बार्किंग कर रहे होते हैं। मिस्टीरियस फ्लेम ऑन है, डेड फायर जो है उसके ऊपर मिस्टीरियस फायर हम देखते हैं। और उसके साथ साथ में जो है जेराल्डीन जो है एंड्रेस हो जाती है और उसके एक टेरिबल जो है स्पॉट दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे, और जब प्रेयर करने के लिए बोलती है चैरिस्टेबल तो वो प्रेयर भी नहीं करती। तो बहुत बार एग्जाम में ये सिंबल भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वो सिंबल हैं। तो इस टाइप से ये इसके अंदर सारे के सारे इसमें इस टाइप के सिंबल होते हैं। और जो पोइम जो है ये स्टार्ट होती है, इट इज द मिडल ऑफ नाइट बाय द castle clock and the hours have awakened the crowning clock to feet। तो इस टाइप से इनकी स्टार्टिंग लाइन है। तो दिस इज अबाउट द चैरिस्टेबल। 2 पार्ट्स में है। 1797 में लिखा गया फर्स्ट, सेकंड 1800 में, थर्ड जो है वो प्लानिंग थी लिखाने। और ये जो पब्लिश कब हुई थी? 1816 में। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, जेराल्डीन जो है विच है, चैरिस्टेबल इसमें फीमेल कैरेक्टर्स है, जो कौन है? प्रिंसेस है ना। और प्रिंस के जो फादर हैं, किंग है, वो जेराल्डीन की हेल्प करना चाहते हैं। चैरिस्टेबल की जो मदर है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो बार बार वो आकर के चैरिस्टेबल के सामने बताना चाहती है कि तुम किसके साथ ये विच है जिसकी हेल्प करना चाहती हो। लेकिन जेराल्डीन है उसकी मदर को भी धमका देती है, उसको डरा देती है और उसको बताने नहीं देती। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है बाय एस.टी. कोलरिज। और इसमें जो है कुछ सिंबल हैं, सुपरनेचुरल जो सिंबल हैं वो एग्जाम में काफी बार जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्क है कुबला खान और ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट। दिस इज अ पोइम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है एस.टी. कोलरिज की। इसका जो सबटाइटल कुबला खान या फिर विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट। ए फ्रैगमेंट इसका जो है कई बार पूछा जाता है, फ्रैगमेंट इसका क्या है। ये भी जो है 1797 में लिखी गई थी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1816 में है। इसके ऊपर कुबला खान के ऊपर भी वीडियो भी बना रखे है उसकी पूरी पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कुबला खान विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट। इसमें कुबला खान जो है मुगल एम्परर होता है। जिनेंटू जो है प्लेस होता है, पैलेस होता है उसका। तो यहाँ पे किस प्रकार से इमेजिनरी जो पैलेस हैं वो बनाते हैं। तो उसमें और जब एस.टी. कोलरिज जब ये पोइम लिख रहा होता है उससे पहले जो है वो थोड़ा सा उसको वो लेते हैं, कुछ नशा वगैरह जो है वो लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो ये पोइम जो है वो लिख रहे होते हैं। ड्रीम जो है एक आधा अधूरा, हम इसको ड्रीम बोलते हैं। ड्रीम आधा अधूरा क्यों है? क्योंकि एट द टाइम ही वाज राइटिंग ही वाज इंटरप्टेड बाय ए पर्सन हु कम्स फ्रॉम पड़ो। बिजनेस पर्पज से कोई पोरलोक जो है वो आता है, पोरलोक से मैन आता है, तो इस वजह से बिजनेस पर्पज से वो आता है। तो इस वजह से जो है इंटरप्ट हो जाता है और आगे की जो लाइंस हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फॉरगेट हो जाता है। और वो किस उसमें लिख रहा होता है, ओपीएम जो उसने लिया होता है शाम को, इस वजह से ओपीएम लेकर के वो सोया था, तो उस वजह से उसको गहरी नींद और स्वप्न आता है, ड्रीम आता है। तो ये एक ड्रीम विजन ही है ना। तो इस वजह से जो है, और वो किसके बेस पे, किससे इन्फ्लुएंस होकर के कुबला खान ने ये लिखी है। दिस इज इन्फ्लुएंस बाय द परचास पिलग्रिमेज। पर्चा के
पिलग्रिमेज से जो है वो इन्फ्लुएंस होकर के लिखी है। तो कुबला खान के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका फ्रेगमेंट जो है इसका सबटाइटल है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम ए फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या है, इसका सबटाइटल है। इसमें मुगल एम्परर है कुबला खान, इसमें पैलेस का नाम है जंजू और ये जो है ओपीएम के नशे में लिखी गई है। इन्फ्लुएंस होकर के लिखा है पर्चा के पिलग्रिम से, और पर्शियन जो आता है जिसकी वजह से इंट्रैक्ट हो जाता है दैट वाज परलोक। कौन था परलोक, किस वजह से आता है, फॉर बिजनेस पर्पज से, वो बिजनेस के पर्पज से यहाँ पे आए होते हैं। इनके जो स्टार्टिंग लाइंस भी आपको याद रखनी चाहिए बिकॉज मेनी टाइम्स इट वाज आल्सो आस्क्ड, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इन अनंडू डिड कुबला खान स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री वेयर अल्फ द सेक्रेड रिवर। यहाँ पे अल्फ जो है वो रिवर का नाम है। रन थ्रो कवन मेजरलेस टू मैन डाउन टू ए सनलेस सी। तो नेक्स्ट हमारा है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफी लिटरेरिया इट वाज रिटन इन 1817। बायोग्राफी लिटरेरिया कब लिखी गई है, 1817 में लिखी गई है। बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, इसका जो है इनमें इसको इस नाम से भी जाना जाता है, सो कॉल्ड बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, इससे भी जाना जाता है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स रिटन इन 1817। इट हैज 23 चैप्टर। बायोग्राफी लिटरेरिया में कितने चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स हैं। ऑटोबायोग्राफी क्यों है, क्योंकि माई लिटरेरी लाइफ ओपिनियंस, इसमें एस.टी. कोलरिज ने अपने जो उनके खुद के लिटरेरी लाइफ है, उनके खुद के ओपिनियंस है, इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म से रिलेटेड काफी सारी इन्होंने टर्म्स भी दी हैं। इसी के अंदर बायोग्राफी है जो हम बहुत फेमस इनकी है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये है। इन्होंने इमेजिनेशन बताया है, प्राइमरी इमेजिनेशन बताया है, सेकेंडरी इमेजिनेशन बताया है, इन्होंने फैंसी बताया है, इन्होंने इसमें प्लास्टिक जो है ये बताया है, पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इन्होंने किस में दी हैं, जब आई हैव बीन ही राइटिंग बायोग्राफी लिटरेरी। बायोग्राफी लिटरेरिया में ही इन्होंने ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो इन्होंने दी है। ये डिफरेंट जो टर्म्स है वो इन्होंने इसमें दी हैं। इसके अंदर जो है कितने चैप्टर्स हैं, 23 इसके अंदर चैप्टर्स हैं। अब कौन से चैप्टर्स के अंदर इन्होंने क्या कौन से जो है टर्म्स दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन में इन्होंने क्या बताया है। प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है पावर ऑफ रिसीविंग इंप्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सीन्स। हम कोई भी सीन देखते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे सामने कोई भी सीन देखते हैं तो वो हम उससे क्या परसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं, क्या देखते हैं, दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन। उसके बाद सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होता है, जिसमें तो प्राइमरी में तो हर कोई जो है वो देखता है, उसको देखता है। हम उसमें से क्या है जो है एक आर्टिस्ट होने की, उसमें हम उसमें से क्या जो है जो हमने रॉ मटेरियल्स हमने लिया, रॉ मटेरियल्स कौन सा, हमने कोई भी देखा, उसमें हम अपनी सेंसेशन, हम अपने इंप्रेशन जो है सप्लाई करते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन में, जो हम ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। जो कुछ भी हमने पजेस किया उसके अंदर हम जो आर्टिस्ट के माने हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, हम अपनी इमेजिनेशन, हम रिक्वायर उसमें एफर्ट जो है वो हम उसमें लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमेजिनेशन बोलेंगे। फैंसी जो है, फैंसी के बारे में क्या है, फैंसी के बारे में कहा है कि नॉट अ क्रिएटिव पावर एट ऑल, ये क्रिएटिव पावर नहीं है, क्या है, इट ओनली कंबाइंस व्हाट इज परसीव्ड इनटू ब्यूटीफुल। हम कोई भी ब्यूटीफुल शेप से हम क्या परसीव करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। इमेजिनेशन इट डजंट फ्यूज एंड यूनिफाई, तो उसको हम कहते हैं फैंसी इज द एब्सेंस ऑफ इमेजिनेशन, इट इज जस्ट अ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स और आइडिया। जो ऑलरेडी थिंग्स आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं उसमें हम क्या इमेजिनेशन हम क्या करते हैं, उसमें ओनली रिकॉन्फ़िगरिंग करते हैं। तो ये फैंसी के बारे में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन भी दी है। फैंसी ऑन द कॉन्ट्ररी हैज नो अदर काउंटर्स टू प्ले विद but fixities and definities. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the other of time and space, while it is blended with and modified by that empirical phenomena of the will which we express by the word choice, जिसमें हम choice जो है word वो भी उसको उसमें यूज करते हैं। उसके बाद जो इसमें प्लास्टिक इन्होंने टर्म दी है, इन्होंने टर्म की है कि इसमें प्लास्टिक बहुत बार पूछा जाता है, हु क्वाइंड द टर्म इसमें प्लास्टिक, दिस इज क्वाइंड बाय एस.टी. कोलरिज। बहुत बार ये भी पूछा जाता है इसमें प्लास्टिक टर्म जो है वो कौन से एस.टी. कोलरिज ने अपने कौन से वर्क में जो है वो डिफाइन किया है, दैट इज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। किस लिए क्या है, डिस्क्राइब करने के लिए पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन।
ये कैसी पावर है? सिंथेटिक इन नेचर, हायर देन फैंसी, ये फैंसी से हायर होती है, इफेक्ट करती है फ्यूजन ऑफ द रेशनल विद द मैजिकल और सुपरनेचुरल, इन सब के साथ में। तो दिस इज अबाउट बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये किसके बारे में है? बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में जो है स्केचेज ऑफ माई लिटरेरी लाइफ, ओपिनियंस ऐसा बोला गया है। 23 चैप्टर्स हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ फीलिंग डिसबिलीफ, ऐसा जो है क्रिटिकल कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है इसके अंदर। तो विलिंग क्या है? हमारा ह्यूमन जो इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है दैट इज फ्रोस्ट एट मिडनाइट। फ्रोस्ट एट मिडनाइट 1798 में, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798 में, फ्रोस्ट एट मिडनाइट। ये पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशनल पोइम, इसको एज ए कन्वर्सेशन पोइम्स भी इसमें कहा गया है। कन्वर्सेशन पोइम इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो पोइट है वो अपने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उनको डिस्कस करता है नेगेटिव मैनर में, और उसको एम्फेसाइज करता है नीड टू बी रेज्ड इन द कंट्री साइड। तो ये इस वजह से इसको कॉल्ड टू कन्वर्सेशन पोइम्स। ये कोलरिज की फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इनका बायोग्राफी लिटरेरिया है, अनसेंट मारिनर है, कुबला खान है, ये सब इनकी काफ़ी चैरिटेबल हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और काफ़ी मैंने इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वही आपके साथ में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं एंड यू कैन मेक नोट्स ऑन द बेस्ड ऑन दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बेस पे, तो आप जो है कोई भी एग्जाम इजीली जो है आप फेस कर सकते हो। एसटी कोलरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें से इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये जो है इसमें जो फ्रोस्ट एट मिडनाइट, यहाँ पे कहीं ना कहीं पोइट जो है वो होप जो है एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे होप दिखाता है, अपने चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे जो है इस पोइम में शेयर करता है फ्रोस्ट एट मिडनाइट 1790 में। उसके बाद एज ए क्रिटिक जो है वो एसटी कोलरिज का क्या रोल था? कोलरिज इज आल्सो रिफर्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है? एसटी कोलरिज। कोलरिज इज रिफर्ड एज हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का उसको हाई प्रीस्ट माना जाता है। कोलरिज सेड दैट ही हैड अ स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ। ये जो टर्म है ये किसने दिया? कोलरिज ने जो एपिग्राफ जो है यूज किया है, स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ। बहुत बार पूछा जाता है स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ, ये कहाँ पे किस ने ये दिया है, किसने यूज किया है? दिस इज बाय कोलरिज। ही यूज द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ। ये जो है ये भी फ्रेज उसने यूज किया, द हाई रोड ऑफ लाइफ। मोटिवलेस मैलिग्निटी इज अ फ्रेज यूज बाय कोलरिज फॉर ईगो इन ओथेलो। ओथेलो के अंदर ईगो जो करैक्टर है, ओथेलो के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे काफ़ी मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बना रखे हैं। तो सतकला बाजिया के नाम से जब आप चैनल सर्च करोगे तो उसमें सारे के सारे जो वीडियोज हैं आपको दिखाई देंगे। तो कोलरिज का जो है ओथेलो के जो ईगो है उसका जो उसको क्या फ्रेज यूज किया उसके लिए? मोटिवलेस मैलिग्निटी। कोलरिज रोट अ रिव्यू ऑफ एनी रेडिक्लिफ एज द मैड मॉन्क। कोलरिज ने एक रिव्यू लिखा एनी रेडिक्लिफ के लिए, द मैड मॉन्क। According to T.S. Eliot के अकॉर्डिंग perhaps the greatest of English critics and in a sense that last। T.S. Eliot ने जो है कोलरिज के लिए क्या बोला है? perhaps the greatest of English critics and in a sense that last। चार्ल्स लैम ने एसटी कोलरिज को बोला है damaged archangel। क्या बोला है? damaged archangel। it is by चार्ल्स लैम। तो ये सारी हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, स्मैक ऑफ हैमलेट इन हिमसेल्फ, द हाई रोड ऑफ लाइफ, मोटिवलेस मैलिग्निटी, द मैड मॉन्क, ये सब जो है ऑल दीज आर यूज्ड बाय एसटी कोलरिज। और एसटी कोलरिज को किस ने क्या क्या उनको बोला है, तो ये हमें सब जो है रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसटी कोलरिज। में यू लाइक इट। अगर आपको शायद आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।